मनोरंजन कुमार जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, कि रेल मंत्रालय के साथ, हमारी श्रम मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। उनकी करीब 16 डिमांड है और कैसे उसको समाधान किया जा सकता है, उसकी बार बार बैठक हो रही है। और मैं भी श्रम मंत्रालय के मंत्री के नाते कहना चाहता हूं कि जो हमारी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक के जो समस्याएं हैं वो समाधान हो। मैं अंतर से चाहता हूं, और जैसे कहा गया कि असम में करीब 60,000 श्रमिक असम में है। इतनी बड़ी एक संख्या असम में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक के रूप में काम कर रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जो समस्या है जरूर समाधान होगी। आज हमारी मनोरंजन कुमार जैसे व्यक्ति इस भारतीय रेलवे माल गोदाम संघ से जुड़े हुए हैं, वो प्रभारी हैं। जरूर आपकी जो समस्या है एक दिन समाधान होगी। We are human beings, so we missing, and then we are coming from Abota. That's why we have to love each other. We have to mingle each other. That's why I'm going to be sick this year. Feeling this one. Apa tani adi ye galau tadi. Misi ye missing Abota ni kumma. Musakkar. Bungolung ke. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा तो रंजन पेग है। मैं यहाँ पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ। तो टीम लीडर भी है। जी सर। तो हमारा ये भलाई के लिए हमारा अपर सम है। जी सर। तो अभी तक हमारा जिसमें इंचार्ज और पिताजी भी आने सकता था। जी सर। इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जितना आदमी वो लेबर लोग, जी, हमारा वो जो वर्कर लोग जुड़ा हुआ है, जी, इन लोग को जी, तो अच्छा समझने के लिए तो सर को यहाँ पे जिम्मेदारी दे के बुलाया था। यहाँ पे हमारा आशावादी है। अभी तो सर ने कमिटमेंट दिया था रामेश्वर के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो मिनिस्टर आएंगे, वो भी बताएंगे। और सारा ज़्यादा तो ज़्यादा तो हमारा ये सामने में जैसे हमारा वो 90 में डिब्रूगढ़, गुच्छेट, जैसे तिनसुकिया, लीडू, लाहौल, ऐसा वाला जितना भी गुच्छेट है वहाँ का, धेमाजी, लखीमपुर, ये सारा Dibrugarh, which is organized by the Bharatiya Railway Mal Godam Shramik Sangh. So it is one of the very important meetings, so that I am along with my friend. Yes, all are still there. So we are here. This is the bus APST Day Super. This is daily service from Namsai to Itanagar. Through this bus, we will go to Dibrugarh today for attending the meeting. Now we are reaching here at Rupai Tinali, so we will go by left turn toward the Dibrugarh. This is the Tinali, Rupai Tinali. But being a morning, so traffic is not so jam here. This is the Dumduma College. It's so big college here in Dibrugarh. When I was at the 12th standard at that time, I also came here to study. After the passing of this college, I went to Teju. Right now we are here at Makum town. So slightly it is suffering traffic, so it's not easy to pass through this narrow road.
Actually, this road is too narrow. I think it should be expand, otherwise it will face problem. Always is like this. So we are here at Tinsukia town. After reaching here, I would like to drink satwa. That's why I'm drinking here satwa. How much goes per glass? I don't know. कितना glass? एक glass का? 10 रुपया करके. Yes, it is too delicious. Tinsukia bus stop. All surrounding covered by the big building here. This is the Tinsukia bus stop. Just now I am reaching here at the place where we are going to conduct, or where we are going to attend the meeting today regarding the Bharatiya Railway Malgadam Shramik Sangh. Looking beyond, there is meeting hall. Lots of people are rushing here. They all are especially to attend the meeting. And one chief guest will come from Delhi. His name is Manoranjan. After reaching here, I am feeling hungry, so that's first thing first. I would like to grab the breakfast here. There's a one hotel. So after reaching here, the spot, now we are going to take tea breakfast. I'm feeling hungry, so that's why I'm going to take this. This is called rice pita. I don't know the exact name of this thing, but hello guys, meet my friend here in Dibrugarh. Here we are coming to attend the Bharatiya Railway Malgadam Shramik Sangh meeting. His name is Wazim Mangami. Your name? My name is Kiran Borwa. How going on nowadays here? क्या चल रहा है आजकल? आजकल क्या चलेगा? अपना काम कर रहे हैं. काम कर रहा है. आप ठीक है ना? ठीक है. तो मीटिंग मिलेगा बोल के आया. और यहाँ में क्या का मीटिंग हो रहा है? DRDMSS का आपका सेंट्रल मीटिंग. कौन आएगा चीफ गेस्ट? रामेश्वर टेली और आपका मनोरंजन सर. मतलब रेलवे डिपार्टमेंट का ना? हाँ. ठीक है. मिलते हैं ना? कहाँ जाएगा? थोड़ा ये कार्ड ले लेते हैं. ले लो. Just now we are sitting here at a meeting hall. So we are sitting. All the employees are sitting now here. So all are sitting together inside the hall. Because sometime meeting will start. हेलो. यस. कहाँ आया था आप? मैं डिब्रूगढ़. क्या करने के लिए आया था? मीटिंग के लिए. क्या का मीटिंग है आज? ये मालगुदाम रेलवे मालगुदाम का मीटिंग. और उसमें से आप कौन सा ये आपका डेजिग्नेशन? शोल्डर है. आपका? मैं मुंशी है. आपसे मैं वन बेंच आगे है. आपसे सीनियर है. आप हमको सर बोलना है. क्या बोलना पड़ेगा? रेस्पेक्ट क्या करो? सर जी बोलना पड़ेगा ना. हाँ, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा. ठीक है ना? हाँ ठीक है. Yes. For today meeting, the chief guest of Bharatiya Railway Malgadam Shramik Sangh. Today, a lot of the employees are coming to attend today's meeting here about the Railway Malgadam Shramik Sangh. ये सर, ये जो भारतीय रेलवे मालगाम श्रमिक संघ का फर्स्ट एवर मीटिंग यहाँ अपर असम में कंडक्ट किया है सर ना. हाँ जी. तो सेंट्रल लेवल से कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहेगा यहाँ मीटिंग में? हाँ, अभी तो हमारा नेशनल इंचार्ज मनोरंजन सर जी आएंगे. वो तो हमारा वो प्रभारी है ना, हमारा
क्या बोला इंडिया का, और नेशन का प्रभारी होता है, तो इसलिए खुद युवा आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होने वाला था, तो हमारा जो महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी जब आने वाला था, इसका जो रास्ते व्यापी दौरा हुआ था, इस प्रोग्राम का शामिल करके यहाँ पे आने वाला था, लेकिन इसका थोड़ा सा तबीयत खराब होने का वजह से वो तो आ नहीं पाया, क्योंकि इसका किडनी दोनों साइड थे वो तो खराब हुआ था। तो इसका बाद इसका बेटी ने तो इसको क्या बोला ट्रांसप्लांटेशन करके इसका किडनी ट्रांसफर करके अभी इसको अच्छा बनाया था, तो भी तो थोड़ा सा उधर उधर घूमना बहुत कोई दिक्कत होता है, इसलिए तो वो आ नहीं पाया। इसलिए वर्कर्स ये कॉन्फ्रेंस बोल के हमारा ये आज का सभा को आयोजित किया जाता है, और हमारा मनोरंजन सर, रामेश्वर तेली और यहाँ का लोकल एमएलए जैसे विनोद आजरिका लावल एमएलए है, और शक्कर गगोई वो भी आएंगे, वो तो मोरान हो के एलएसी का वो तो एमएलए है, और यहाँ का हमारा क्या बोला बसंत पुखन वो भी आएंगे, वो तो चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ असम वो भी आएंगे, कैबिनेट रैंक का होता है वो सर जी। ऐसे करके अभी ये संजय किशन को बुला रहा है, कुछ कारण से आ नहीं पाएगा तो अलग बात है, लेकिन वो भी कमिटमेंट दिया था आज का प्रोग्राम का लिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो रेलवे भारतीय माल श्रमिक संघ का ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है, ये इशू जो कब तक सुलझाने के लिए आपका आशावादी है? तो ऐसे तो देखो तो 1998 से वो ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमारा पिताजी और उनका पासवान का नेतृत्व में, लेकिन ऐसे हुआ है बीच में कुछ कारण से रुका हुआ था। 2003 में जो ट्रिपार्टाइट बैठक हुआ था गवर्नमेंट का साथ, वो में भी पास हुआ था, हमारा जो रेज हुआ था हमारा डिमांड, इसको भी गवर्नमेंट हासिल करने के लिए हमको कमिटमेंट दिया था। इसका बाद भी 2021 का 23 मार्च में एक बैठक हुआ था, त्रिपाठिक बैठक, वो बैठक में अच्छा करके तो गवर्नमेंट ने हमारा जो डिमांड है उसको मान लिया और इम्प्लीमेंटेशन का लिए अभी बाकी है। लेकिन हमारा एक काम बाकी होता है, हमारा जितना भी वर्कर्स है इसको लिंक करना बाकी है। जब डाटाबेस गवर्नमेंट का साथ मंत्रालय का साथ मौजूद हो जाएगा तो भी हमारा काम चालू हो जाएगा, तब से सर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी सब कुछ ऑलरेडी हो गया, बस ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी। हाँ, ये डाटाबेस सबमिट करेगा तो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट का तरफ से सब क्या बोला सब ऑर्डर पास हो सका है। सिर्फ हमारा डाटाबेस जब गवर्नमेंट को सबमिट करेगा तो गवर्नमेंट ने लागू करेगा। सर ये कब तक आशा है, आप लोग का डाटाबेस कब तक सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को? तो ऐसे तो हमारा जितना भी जल्दी हम हो सकेगा सबमिट कर सकेगा इतना भी जल्दी होगा। इसलिए शायद हम तो ये 2022 तो चला जाता है, तो तभी तो हम आशावादी है 2023 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसका आगे में इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इसका आगे में शायद हमारा वो जो डिमांड है ना, हमारा जो हमको फैसिलिटी देता है ये प्रोवाइड करेंगे। और अभी तो हमारा तो 2 हेक्टर भी हमारा आधार भी निकलता है प्रोवाइड के लिए, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड किया था ये भी हमारा पास अभी मौजूद है। तो भी तो हमारा वो कर डाटाबेस नहीं जमा करेगा तो कैसे उन लोग इम्प्लीमेंट करेगा, यही बाकी है। सबसे पहले ये लेबर लोग का नाम यानी कि डाटाबेस को सबमिट करने का बाद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पाएगा, अदरवाइज वो विदाउट नोइंग हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट इट, दे आर अनेबल टू implementation because first time we are going to be submit of our database for all the workers of the India, and then after they are going to be implemented by the government. There is no mind, but it is late for late for our process. Then sir, we being a Bharatiya Mal Gadam Shramik Sangh, we hope that within the 2023 elections to be implemented, not it? Yes, 100%. It is a good news for every worker of the small Gadam, because implement should be happen within the year of 2003. Okay. Thanks to you. You are orientally, and therefore I am going to request you. Moreover, published by our then what is the then government holiday has been approved. Okay. Thank you. Nice to meet you. Okay. So here I meet with Rajan Kuli. He is the famous singer of Assam Missing Tribe. Just now he is sitting with me. So I don't know. I'm good. No, उनको लोग ये नहीं ला। वो सो भारतीय रेलवे माल भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ तो आप pengen dong ini lo उनको पोस्ट दो उनको नहीं मिला itu मुंशी ओ बाबा ऑफिसर है especially sida na Ranjan ke ko Manisar Pame concept the operator feelingness of one
So people are divided. Some people are saying I am a Tegu. No one can defeat because of we have many Royal family. Yeah. The Dole also like Kutum also. Our Kuli also. So what is your motto regarding that? Regarding that means my surname is Kuli. Yeah. But your But mom? my mom is Thai. Yeah. Here the troop of Sunal Kasari. Cultural troop. So, the Railway Bharatiya Railway Malgadam Shramik Sangh meeting. Andhra Ministry is just now here. নমস্কাৰ মই ৰঞ্জিতা দত্তই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আজিৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গোদাম শ্ৰমিক সংঘই অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছো। আশা কৰিছো আজিৰ অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম। आप सभी को आज के अनुष्ठान में मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। आज के अनुष्ठान शुरू करने से पहले अनुष्ठान के बारे में छोटा सा विवरण देना चाहती हूँ। The Bharatiya Railway Mal Godaam Shramik Sangha BRMSGSS is an officially recognized labor union which registration number 3768/98. The organization's founder, Mr. Arun Kumar Paswan, he is the one who would see a very oppressive condition for the workers at the creator's goods shed for the railway, where it is believed that they have no legal claim to a safe place to raise their families. Mr. Arun Kumar Paswan wanted to devote himself as the guardian of workers in the work shed of the railway for the benefit of those who work as loaders and unloaders. He desired citizenship in a country in order to release for his contract. In these circumstances, Bharatiya Railway Mal Godaam Shramik Sangha was established. The organization's founding has faced challenges due to the democratic process of welfare. Jagdambika Paul, an honorable member of parliament,
Respected Mr. Rajnath Singh and Mr. Amit Shah have all joined our democracy movement with full support. According to the trilateral agreement reached on March 23, 2021, amenities of our employees will be implemented. Member of the Bharatiya Railway Mal Godown Shramik Sangha in Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland has planned this conference in regard to learn more about the amenities offered workers. In this meeting, Mr. Manuranjan Kumar, National In Charge of BRMGSS, will provide his insightful address to our staff. In our meeting, we have with us as special guest of honor, Mr. Rameshwar Telly sir, the Government of India's Honorable Minister of Labor and Employment and Petroleum. Mr. Manuranjan Kumar, sir, National In Charge of BRMGSS. Mr. Vinod Hajarika, Honorable Minister of Legislative Assembly of Labuan Legislative Assembly Constituency. Mr. Dhan Kumar Deka, Main Advisor of the Organization Committee. Now, may I request Mr. Ranjan Pegu sir to deliver his welcome speech. তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী মনোৰঞ্জন কুমাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় ব্যক্তি যিজনে আমাৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে, যিজন মানুহে আজি ভাৰত চৰকাৰৰ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি শ্ৰমমন্ত্ৰী নিচিনা এজন এটা পদত সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত কৰি আছে। তেওঁ আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও আজি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আমাৰ সৌভাগ্যৱান হৈছে। গতিকে একেসকলে আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ যিবিলাক আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ হৈছে, আমাক গভৰ্ণমেণ্টে কি কি সুবিধা প্ৰভাইড কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু কি কি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে সকলো বিষয়ে তথ্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ National Provider Manoranjan Sarji will have to deliver his valuable speech to the workers of welfare of the railway good set. Then his union Tinsukia, Raghunath Singh, General Secretary of this Assam Motor Workers Union, and Munna Yadav. He is the Ibo Kano Nujunase. Amara President or Secretary Assam Motor Workers Union का जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद है, इन लोगों की दायित्व से आने के लिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ। और मुन्ना यादव भी हमारा 30 का कुछ का सरदार होता है, इसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ। विकेट के आजियो भाषण हमार सम्मानीय हमार बाइदेव तो श्रीमती सीमा मंत्री तेव नेतृत्व हमार বহুখিনি কৰ্মীয়ে গোটেই অসম ভিত্তিক আমি আজি এইখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছো। ইয়াত আছে আমাৰ মনেশ্বৰ পামেগাম, হৰিপ্ৰসাদ বৰঠাকুৰ, ৰূপক সোণোৱাল, লক্ষী বৰুৱা, দিলীপ বেলা, মুবাৰক হুছেইন, সুদেৱ তো সম্ভাৱনা জনোৱা হৈছে ধন কুমাৰ ডেকাৰ আৰু লগতে মনেশ্বৰ পামেগাম তেওঁ আৰু পুৰাম গাঁৱৰে সম্ভাৱনা জনোৱা হৈছে। সুদেৱ চন্দ্ৰ দাস আমাৰ ৰেলৱে মাল গুদামৰ এখন প্ৰতীক, তেওঁলৈ আমি সম্ভাৱনাত কাৰক যাতে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে জনোৱা হৈছে। এখন আমাৰ ভাৰতীয় ৰেল আমি ইয়াতে কৰ্মৰত, গতিকে এখেতক আমাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতে সম্ভাৱনা কৰিবলৈ গৈ আছো
हमारे राष्ट्रीय सेटलमेंट के लिए जो लड़ाई करते रहा है वो जो हमारा मनोरंजन सर जी और राष्ट्रीय प्रभारी को अभी प्रेजेंटिंग करेगा हमारा क्या सुरेश चंद्र दास। और इसको हमको एक तो मालगुदाम का मालवाही का रेल एक तो हम गिफ्ट दे रहा हूँ, वो दे रहा है भद्रेश्वर सरकार, वो न्यू बॉयगांव से आ रहा है। और हेमंत कोरे गामसा ইয়াৰ পাছত আমাৰ আহিব অনুৰোধ জনাইছো সম্পূৰ্ণ জনাবৰ বাবে সম্পক বৰা শান্তনু বৰগোহাঁই শান্তনু আমাৰ ৰামেশ্বৰ পেচাৰক জাপি এখন দি সম্পূৰ্ণ জনাবৰ কাৰণে জনাব। Ayah pasal pernah dalam kamar sampah namanya pernah dalam kamar kami untuk berasi sampah namanya untuk berasi। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि महोदय भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन है, उसका लाइफलाइन अगर कोई है तो ये माल गोदाम के श्रमिक हैं। आप जानते होंगे मंत्री जी कि भारतीय रेल की हर साल जो बजट पेश की जाती है उसमें लगभग 70% की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल गोदाम माल भाड़े से आता है। माल गोदाम के श्रमिक दिन रात चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, तमाम परिस्थिति में ये दिन रात मेहनत करके हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और रेलवे को जो 70% की आमदनी देने का काम करता हो, इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उस रेलवे का अगर कोई लाइफलाइन है तो ये माल गोदाम के श्रमिक। इन माल गोदाम के श्रमिक के बिना रेलवे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1998 से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने जो एफसीआई की भी लड़ाई लड़े थे, उन्होंने सोचा कि जब एफसीआई के मजदूरों का रेगुलाइजेशन हो सकता है, जब गैंगमैन को हो सकता है, सफाई कर्मचारी को हो सकता है, यहाँ तक हमारे कूली भाई को बेहतर सुविधा और उसको भी रेगुलाइजेशन हो सकता है, तो जो रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम कर रहा हो वो से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का हक अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। यह सोच करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक संगठन, एक घर बना और उसके गार्जियन हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी बने। हम लोगों ने चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहा हो, संसद भवन का घेराव रहा हो, या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जेल भरो आंदोलन रहा हो, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और असम के सभी जगह से 25 से 30 हजार माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और श्रम मंत्री उस समय स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा थे, सबसे पहले भारत के इतिहास में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस समय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ही सरकार को एक सुझाव देने का काम किए थे कि हमारा ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून है, उस श्रम कानूनों में, उस संविधान में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं है। और अन्य भी बहुत तरह के श्रमिक हैं जिनको कानून में, संविधान में जगह स्थान नहीं मिलने के कारण उनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा। उस समय उस कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ, दुर्भाग्य से सरकार चली गई और सदन में ये पेश नहीं हो पाया।
2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम सभी लोगों ने लगातार, क्योंकि हम 10 साल जो संघर्ष किए, जो हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तमाम कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, तो कभी हमारे साथ राजनाथ सिंह बैठने के काम करते थे, हमारे साहब सिंह वर्मा जी बैठने काम करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठने काम करते थे। और जब ये सरकार बनी तो उनको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस आंदोलन के समय में वो हमारे साथ रहते थे, तो उनको सभी आपकी समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। 2014 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने लगातार श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री उस समय वर्तमान संतोष गंगवार जी के साथ लगातार बैठक किए, और आज जो 4 लेबर कोड के रूप में पूरे देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों का भविष्य का रास्ता कहीं प्रशस्त हुआ है, उसके लिए मैं भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारी दूसरी त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमने उस बैठक में श्रम मंत्री जी के समक्ष रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ हमारी बैठक थी। श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक संपन्न हो रही थी। उसमें हमने आपके लिए 14 मांग रखा। हमारा माल गोदाम के श्रमिक दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम करते हैं। कभी सीमेंट की बोरी उतारते समय, खाद की बोरी उतारते समय, कोयला की लोडिंग करते समय, कभी आयरन की लोडिंग करते समय हमेशा दुर्घटनाओं से भरा रहता है। कभी इनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। इतनी कड़ी मेहनत करके ये देश में आर्थिक आजादी की चुपचाप अपना खून पसीना की कमाई दे करके भारत सरकार को और हमारे भारत को मजबूत करने वाले ऐसे हमारे श्रमिक, उनको मेडिकल की सुविधा हो। जिस तरह FCI के श्रमिकों को सरकारीकरण किया गया, रेगुलाइजेशन किया गया है, उसी तरह से माल गोदाम के श्रमिकों को भी रेगुलाइजेशन किया जाए। हमने मांग किया कि हमारा माल गोदाम के श्रमिक दिन रात जो मेहनत करता है, उसको कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपया, कहीं 80 पैसा तक मजदूरी मिलता है। आप कल्पना करिए मंत्री जी कि जिस देश में आज 1 रुपया 80 पैसा का चलन नहीं है और वो मजदूरी हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को मिलता है, जो रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम करते हैं, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य। मैंने उस बैठक में रखा। हमने इनके बच्चों के बेहतर शिक्षा की सुविधा के लिए मांग रखी। हमने अपने माल गोदाम के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। ये तमाम मांग हमने 23 मार्च की बैठक में रखा। और मैं धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करना चाहता हूं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के कि हमारे 14 से 14 मांगों के साथ उन्होंने स्वीकृति दिया और उन्होंने मांगा कि माल गोदाम के श्रमिकों के सभी मांग बिल्कुल जायज है, उनको मिलना चाहिए। आज पूरे देश में भारत सरकार ने कितने माल गोदाम में, कितनी संख्या में माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, उनका डाटाबेस कंप्लीट करने के लिए इस श्रम कार्ड की व्यवस्था की। आज हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और रेलवे प्रशासन के सहयोग के द्वारा लगभग पूरे देश में 7 लाख की संख्या में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं और उनका 80% जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और हम बहुत ही जल्द अपने मजदूरों का ई श्रम कार्ड और संगठन जो राजन चौहान जी ने हमको QR कार्ड दिए थे, उन दोनों को लिंक करा करके हम श्रम मंत्रालय में सबमिट करने का काम करेंगे, ताकि जो हमारा मांग उसमें मिला है वो आपके हाथों तक पहुंचने का काम। माननीय मंत्री जी से लगभग 3 बार इनके कार्यालय श्रम मंत्रालय में, पेट्रोलियम मंत्रालय में मैं इनके साथ मिला हूं और मिल करके मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं एक मंत्री जी से मिल रहा हूं। इतने साधारण व्यक्तित्व के, इतने ऊंची लोगों के प्रति जुड़ाव और इतने साधारण तरीके से रहते हैं, इससे यह पता चलता है कि रेलवे माल गोदाम हो या देश का कोई भी श्रमिक हो, इनके रहते हुए उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, ये मुझे पूरा भरोसा है। अभी
कल हमारी बैठक रेल मंत्रालय के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी जी के साथ कल हमारी बैठक हुई है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मैंने आज 1998 से भारत सरकार के रेल मंत्रालय को ये बात कहते हुए आया कि जब इस पूरी व्यवस्था को रेल मंत्रालय अपने अधीन ले लेंगे तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के घर में भी रोशनी बढ़ने का काम होगा और हमारा रेल मंत्रालय में बहुत ज्यादा अर्निंग की व्यवस्था होगी। जहां 70% की आमदनी आज माल भाड़े से आ रहा है और जिस समय रेल मंत्रालय रेलवे माल गोदाम की लोडिंग अनलोडिंग की सारी व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले लेगी, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को रेल कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा तो 70% से वो 90% तक पहुंचने का काम हो जाएगा। कल जब हमारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारी रेल मंत्रालय जो है इसके लिए बहुत बेहतर पॉलिसी बनाया जा रहा है और आप देश के अलग अलग जोनों में अलग अलग माल गोदामों में किस तरीके से माल गोदाम के श्रमिकों की क्या समस्या हो रहा है, कैसे इसके लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाया जाए, उसके लिए आप मुझे लिखित रूप में हमारे साथ संपर्क स्थापित करके रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रेल मंत्रालय के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ आपके हक अधिकार को देने के लिए आपको रेलवे में बेहतर वेतनमान सुविधा प्राप्त हो, आपको भी एक रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम शुरुआत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आपके संगठन के आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को उस कल की बैठक में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के माध्यम से जितने भी माल गोदाम के श्रमिकों का डाटाबेस कंप्लीट हुआ है, हर माल गोदाम में कहां कहां पे क्या व्यवस्था है, उसका पूरा विस्तृत रिपोर्ट आप जल्द से जल्द सुपुर्द करें और लगातार आपकी संगठन रेल मंत्रालय के साथ संबंध बना करके बैठक के माध्यम से होते रहे। हम लोग जल्द से जल्द रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करें। मैं आज आपके सामने आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा 1998 जो संगठन लड़ाई लड़ रही है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है। आप पूरे असम नहीं, पूरे देश के जितने भी मजदूर हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके हाथ में उनका हक अधिकार सुरक्षित है। मैं आपसे मांग करता हूं कि असम प्रदेश के लगभग 7,000 जो श्रमिक हैं उनका जो भविष्य सुरक्षित होने का काम हो रहा है उसमें आप हमें सहयोग करें, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो तो ये काम हम लोग और बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। यही बात कर करके और मुझे पूरा भरोसा है कि एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ के हमारे पदाधिकारी ने रखे और जब मंत्री जी के पास गए उन्होंने तुरंत समय दिया। यहाँ आपके यहाँ कोई इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में मंत्री जी का अलग अलग जगह कार्यक्रम था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम को छोड़ करके आप तक यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि ये आपके हक अधिकार, आपकी मांग को जो समस्या है उसको दूर करने के लिए अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। और अगर ये कदम को बढ़ा चुके हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जो सपना हम लोगों ने 1998 से देखा है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भारत सरकार में एक कर्मचारी के रूप में दर्जा प्राप्त करेंगे और मान सम्मान के साथ इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। और यह उपस्थित सभी भाई और बहन, जैसे मनोजन कुमार ने कहा, सचमुच हमारी आसाम में एक इलेक्शन चल रही है, देवरी ऑटोनॉमस काउंसिल की इलेक्शन, और मैं उसमें व्यस्त रहा। अभी भी मुझे जाना है, इसलिए मैं जो लोग गए थे मुझे निमंत्रण करने के लिए, मैंने कहा कि 2 दिन के बाद आप लोग कीजिए, मैं आपकी मीटिंग में 2-3 घंटा रहूंगा।
लेकिन आज 5 तारीख की सभा में शायद मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग सभी लोगों को बुला लिए हैं, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी भी आने वाले हैं, इसको टालना मुश्किल है। लेकिन मैं अपना ही मीटिंग कुछ समय के लिए टालकर आप लोगों के बीच पहुंचा। जैसे मनोरंजन कुमार ने कहा कि रेलवे की जो इनकम होती है उसमें करीब 70% माल से कमाया जाता है। और हमारी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि कोई अगर माल अगर आप पानी से लेके जाते हैं तो 25 पैसा लगता है, ट्रेन से लेके जाते हैं तो 50 पैसा, और ट्रक से लेके जाते हैं तो 1 रुपया लगता है। तो ज्यादातर लोग, क्योंकि हमारी आसाम में पानी से जाना बहुत मुश्किल है, तो ज्यादातर लोग ट्रेन से ही अपना माल लेके जाते हैं। तो आप लोग इस हमारी जो मालगुदा श्रमिक के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, और ये हमारी भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक ट्रेन से जाने वाले कोई भी सामान आप लोग ढोते हैं। जैसे मनोरंजन कुमार जी ने कहा कि कोई सीमेंट, कोयले, कोई भी चीज अगर श्रमिक अगर ढोते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन ठेकेदार के द्वारा ही लगाया जाता है। ट्रेन आने के बाद मैंने देखा है कुछ दबंग ठेकेदार रहते हैं और वो कॉन्टेक्ट लेते हैं कि ये सामान हम उतारेंगे, और वहां जो श्रमिक रहते हैं, जैसे मनोरंजन जी ने कहा कि एक बोरी सीमेंट उतारने में 1 रुपया देते हैं, लेकिन वो हो सकता है 2 रुपया 3 रुपया ले लेते हैं। ऐसे बीच में बैठ के कुछ नहीं करके वो लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन इसकी जो हकदार है, जो हमारी रेलवे मालगुदाम के जो श्रमिक है, उनको नहीं मिलते। और इसीलिए 1998 में भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ का जन्म हुआ, और तब से भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ काम कर रहे हैं कि हम इस श्रमिक के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसी तरह से जैसे हमारी पूरा विश्वास है, और हम भी चाहते हैं रेलवे भी इस पर विचार करें, क्यों ये विषय रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए रेलवे भी अपनी तरफ से वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए कि भारतीय रेलवे मालगुदाम के जो श्रमिक है उसकी समस्या कैसे समाधान हो। तो मैं वैसे दिबलिया पर विषय है जो 4 कोर्ट आने वाली है, उसका बारे में भी कभी अगर समय मिले तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो 4 कोर्ट लेके आ रही है, इससे क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा। ऐसी एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अगर कहीं ट्रेन लगा दिया है और माल वहां उतर रही है, वहां अगर महिला श्रमिक है तो उसका एक बच्चा है, उसको खिलाने के लिए भी उस जगह एक घर बनाना होगा। ऐसी व्यवस्था है। हो सकता है माल उतारते समय एक उस जगह एम्बुलेंस भी रखना होगा कि कोई कारण से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो साथ ही साथ मेडिकल ले जाना होगा। ये 4 कोड आने से ऐसी बहुत सी बातें कहा गया है,
तो मालिक पक्ष की तरफ से कहीं कहीं ऑब्जेक्शन भी आ रही है कि ऐसी व्यवस्था होने से जो मालिक है उनकी तकलीफ हो। तो मैं कभी अगर समय मिले तो जरूर इसको बारे में विस्तार से आप लोग बताऊंगा। After attending the meeting, now we are going to leave this place because we are feeling hungry. So we'll have to take food at the hotel now. After attending the Railway Bharatiya Malgadam Shramik Sangh meeting, now we are going to leave this place. Minikar has came to here to attend the meeting. Rameswati Eliji was also attending the meeting, and Manoranjan Kumar Prabhari, Rashtriya Prabhari of Railway Malgadam Shramik Sangh.